Hello, good afternoon, SYBSC students. Shall we start? Good afternoon, SYBSC students. Shall we start? Good afternoon, ma'am. Good Yes. afternoon. Okay, which was the last point yesterday? Which was the last point yesterday? Do you remember? I think that this point is over. The natural disaster, major adverse event. I think it is over, na? It is over. Hybrid, natural disaster, three types. Natural disaster, man-made disaster, and a hybrid disaster. Am I right? 3 point was over, na? One question was over. Okay, now we will discuss today the new question. Explain the types of effect of disaster on human life. Who is scribbling here? Who is scribbling here? Please erase this one. Does it look good, all of you? Does it look good? Okay. So, whenever we are going to discuss about that effects of disaster, there are four types. That first is physical effect, then second one is social effect, third one is economic effect, and fourth one is psychological effect. Understand? How many types? There are four types. There are four types. First is physical, second one is social, third one is economical, and fourth one is psychological. Now we will discuss the first point, that physical effect. Okay, that physical effect, that physical injury. First point. Generally, several people get injured by the earthquake, floods, and cyclone. For example, in 2001, the earthquake in Gujarat, about 1.7 lakh people were injured. In 1993, there was an earthquake in Latur. Over 30,000 people were injured. Okay, so whenever we are going to discuss about the physical effect or physical effect, at that time we come to know that the physical related to the physical damage, that physical, for example, infrastructure, man or something like that. Okay, तो यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया है कि whenever the earthquake occurred in 2001 in Gujarat, at that time the 1.7 lakh people were injured. Okay, so whatever the data will be given, what do you say that, or what do you think that that data is proper? Data is proper? Yes or no? The proper data is given to you? Yes or no? No, ma'am. No, more than that number is given, whatever the data's number is given, more than many people were died or many people were injured. Here it is only one of the survey. Oh, okay, the next point is death. The disaster like earthquake, flood, drought, and cyclone storm can be result in the death of several people. Yes, whenever the natural disaster occurs, that many people loses their lives. In that for example, one example is given. In India, the highest ever death toll was recorded in 1969 famine in Bengal. So whenever that earthquake occurred in Bengal in 1969, the many people lost their lives, and about 10 million people died in this famine. So more than, I think so, the more than 10 million people, because our India holds the second rank for population in the world. Okay, so after onwards, the people, there will be the no decline of the people. So here the many people lost their lives in the earthquake, sorry, famine in Bengal. That's so that at that time the death rate was very high. Okay, the second example is given. The cyclone in 1970 in West Bengal killed about 5 lakh people. Okay, so here also, that whenever the cyclone occurred in 1970 in West Bengal, the 5 lakh people were died, and more than 15,000 lost their lives in 1999 cyclone in Orissa. The same cyclone occurred in Orissa in 1999. At that time, the 15,000 people lost their lives. Do you understand this point properly, all of you? Do you understand? Yes, ma'am. Okay. Then next point, social effects. Okay. So, uh,
suppose something wrong happen, okay, so its impact is seen everywhere. Something wrong happen, that its impact is seen everywhere. Yesterday I was also talking about the cyclone which had came on 3rd June in our Dapoli also. Am I right? I had given the example. Am I right? Am I right? Those who had Yes, ma'am. attended. ओके, तो जैसे मैंने कल बोला था, आज मैं फिर से थोड़ा सा एक रिपीट कर रही हूँ कि उस टाइम सबका जो हमारा जो समाज का सामाजिक जो जीवन था वो कैसा था, अच्छा था या तितर बितर था, लाइफ कैसा था, स्मूथ गोइंग था या फुल ऑफ स्ट्रगलिंग लाइफ था, उस टाइम कैसा था, ये लाइफ कैसा होता है उस टाइम, whenever the disasters occurs the life is full of struggles. Okay, यहाँ पे देखेंगे the economic and social development throughout the world is frequently interrupted by the extreme events. Okay, so whenever these extreme events occur, at that time the social life and social development and economic development is also going to be disturbed. That the Pacific Rim is particularly vulnerable to natural disaster, thus the social and economic losses. Okay, so its impact is seen everywhere in every factor of the life. Although the disaster events impact both developed and developing countries. Okay, so what do we think that our India is developing country or developed country? In which category it is? In which category it is? India is in which category it is? Tell me, are you here? All of you? Are you here? India is in which category? India is in which category? Developing. Developing Developing. country. Okay. So what do we think that if that so cyclone or famine or something natural calamities happen or occur in developed countries, they will not be affected more. It will be affected more, but that when the developing countries, when we are talking about developing countries or developed countries, is affect is seen more, most probably in developing countries. In later, they can cause the sharp increase in the poverty. So whenever these incidents happen, extreme events happens, at that time it turns into the poverty, as disaster pose the important challenge to the development of Pacific Rim. Okay, so something that normal life is going on and something happen or something some events occur, so it's going to be disturbed, and for everybody, for every individual, it is going to be challenged to accept the situation. आपका बंद कीजिए, मैं बाद में मैं अपना स्टार्ट करूंगी. अपना ऑडियो म्यूट कीजिए. जब मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ तब आपको आंसर देना जरूरी है, अदरवाइज यू म्यूट योर ऑडियो. जियान चौगले, जियान चौगले, अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज. Okay, so for that particular, at that time, for every individual, for every person, it is going to be challenging or to accept the situation. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Am I right or wrong? डिस्टर्ब ना एट दैट टाइम. हम अपना ही एक एग्जांपल ले ले तो कैसा था उस टाइम का जो वक्त था वो कैसा था? टफ था ना? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो उस टाइम जो सिचुएशन है उसको हमें फेस करना है, उसको एक्सेप्ट करना है. उस सिचुएशन को तुरंत हम जल्दी से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए या उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है. एम आई राइट? ओके. It is important to assess their global, regional, economical, and social impacts. Most the economic assessment of the impacts of disaster have concentrated on the direct losses, that is financial cost of physical damage. Okay, तो जैसे for example is direct impact is seen, that natural calamities is direct impact is seen in the physical damage.
For example, the collapse of school, the collapse of colleges, the collapse of buildings, the collapse of houses. Yes, am I right? The collapse of roads and railways and everything, the physical damage which is going to be recovered, or which is going to be, whenever it will be going to be recovered, it takes lot of financial help, and it also takes lot of time. Am I right? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है, किसी का घर टूट गया है, क्या हो रहा है, रोड खराब हो गए हैं, रोड टूट गए हैं, ब्रिज टूट गए हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको बनाने के लिए पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और वक्त भी लगता है कि चलो अब आज सोचा और कल ब्रिज तैयार हो गया। ऐसा होता है क्या? और ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। होता है। नहीं. Okay, just tell me, are you really listening to me when I'm asking you? Are you really listening to me, or are you eating? Yes, ma'am. Are you taking Yes, your ma'am. lunch? Okay, equally important are the direct, indirect, and secondary impacts of disaster, including the destruction of communities and the negative impacts on their families. Okay, so whenever this kind of that calamities occur, that we will see that people are also divided into the groups. People are also divided into the groups of communities. Okay, तो जो अपना कास्ट वाला होगा, सो अपने कास्ट के लोगों को ही मदद करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? 99%, 98% पीपल की जो सोच होती है वो ऐसी ही हो जाती है। हार्डली 1 और 2% की जो सोच होती है, 1 और 2% जो पीपल होते हैं, उनकी सोच होती है कि सबका अच्छा होना है, सबको मदद करना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे जो सिचुएशन आती है, तो लोग अपने कास्ट को ही, अपने ही लोगों के, अपने धर्मों के लोगों को ही सिर्फ मदद करते हैं। उनका सोचने का जो जरिया होता है वो भी बदल जाता है। अंडरस्टैंड? Understand? Do you understand? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Next point. आगे देखेंगे उसमें। The challenges posed by the potential disaster in Pacific Rim countries require rapid action and also energetic risk management strategy. So whenever or wherever the natural disaster occurs, it needs the disaster management or risk management strategy to recover the fast, to recover the situation very fastly. Okay, for example, कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आग लगी है, और आग लगने के बाद सब कुछ जल जाने के बाद जब फायर ब्रिगेड आता है, तो उसका क्या फायदा? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड और नॉट? तो उस टाइम पे Yes. जब मदद मिलना चाहिए, मदद होना चाहिए, और रैपिड एक्शन होना चाहिए कि हाँ, कि फॉर एग्जांपल आपने जब मोस्ट प्रोबेबली हम मूवी में देखते हैं कि जो इंडियन पुलिस होती है, सब कुछ खत्म होने जाने के बाद आती है, तो वैसा चलेगा क्या? वैसा चलेगा क्या? यस और नो? सब कुछ खत्म हो जाने के? No. नो। ओके, सो it takes rapid action. It has to be takes to rapid action and risk management strategy. It has to reduce those negative impacts and countries and need an overall evaluation of their risk, including first point is risk identification, risk reduction, and third point is risk transfer. तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट इस जगह जो काम करता है, तो उनका काम क्या है, तो किस प्रमाण में या किस मात्रा में वहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, या किस मात्रा में वहाँ पे नुकसान हुआ है, तो उसका वो मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल दूसरा पॉइंट दिया है कि रिस्क रिडक्शन कितना कम हो सकता है, कि यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं। ओके, तो वो हुआ रिस्क रिडक्शन। एंड रिस्क ट्रांसफर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जगह से हो गए तो दूसरी जगह पे उसका ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वहाँ पे मदद पहुँचना चाहिए, तो होता है, हम बोलते हैं रिस्क ट्रांसफर। ओके, फॉर एग्जांपल जिससे हमारे यहाँ पे साइक्लोन हुआ था, साइक्लोन आया था, तो हमको जो चीज़ें जब अवेलेबल चाहिए थी, तो सभी हमको उस टाइम एग्जैक्टली उसी टाइम पे मिल जाता था क्या? एग्जैक्टली उस टाइम पर मिल जाता था क्या? यस और नो? नहीं. नहीं, क्योंकि No. फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर का कुछ नुकसान हो गया है, प्लम्बर चाहिए या जो रिपेयरमेंट करने वाला चाहिए, तो वो इंसान हमको तुरंत मिल जाते थे या हमको वेट करना पड़ता था? तुरंत मिल जाते थे या वेट करना पड़ता था?
वेट करना पड़ता था। हाँ, तो वो उसकी वजह से मीन्स क्या होता है, उसका रिस्क आइडेंटिफिकेशन कितनी मात्रा में हुआ है, रिस्क रिडक्शन कितना कम करना चाहिए, और रिस्क ट्रांसफर, तो उसको किस तरह से जल्दी लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द concentrated action on the risk management will help the create and increase awareness of the economy. Okay, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम होता है, तो उनका काम क्या होता है कि इसके साथ साथ लोगों में थोड़ी सी एक अवेयरनेस भी लानी चाहिए. और जब जब लोगों में अवेयरनेस आती है, जब लोगों का सोचने का तरीका बदलता है, तो वो कुछ हम बोलते हैं कि कुछ अलग करेंगे या उस टाइम में अपने आप को संभले, उतनी ही बहुत बड़ी बात हो जाती है. उस टाइम में अपने आप को संभालना उतनी बड़ी बात हो जाती है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज वाइड significance of natural disasters and problems they cause for long term development. कि हमको ये पता है कि अगर ये फिजिकल डैमेज है, ये ब्रिज टूटा हुआ है, तो उसको बनने में 1-1.5 साल या 2 साल लग जाएंगे. ओके, तो वो जो एक अवेयरनेस जो लाने का हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट काम करते हैं, तो वो एक जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अभी का जो लॉकडाउन का जो सिचुएशन था, ओके, तो किसी के पास भी पैसा मांगना हमारे लिए उस टाइम सही था या गलत था? सही था. किसी के पास हम पैसे मांग सकते थे, किसी के पास भी हम पैसे हाथ फैला सकते थे पैसों के लिए? नहीं नहीं. क्यों? क्योंकि सबकी सिचुएशन टाइट थी. सबकी सिचुएशन टाइट थी. अगर किसी के पास ज्यादा है तो उसके पास मांग सकते थे, लेकिन जो हमारे जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, तो उसके पास मांगना वो हमारे लिए ठीक होगा क्या? उस टाइम में हमारे लिए ठीक होगा? नहीं. ओके. जैसे आपको पता होगा कि लॉकडाउन में कुछ लोगों ने जिस लोगों को कुछ मदद चाहिए थी, वो सब कुछ पहुंचाने के हर तरीके से कोशिश किया था. फॉर एग्जांपल वो जो लीजेंड है, या जो हम बोलते हैं रतन टाटा है, कि और कोई जो व्यक्ति है जिसके पास हमसे ज़्यादा डबल है, उन्होंने जितना एक बोलते हैं कि एक जरिया है, वो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश लोगों को किया था. Am I right? Am I right? Yes. Yes. ओके. आपको शायद नाम भी पता होंगे कि किसने कितने पैसे दिए, किसने क्या किया, और पूरा लिस्ट न्यूज़पेपर में आया था, या न्यूज़ में भी आपने देखा होगा. ओके. Okay, now we will see the direct effect of physical damage. The direct effect is that is structural damage, wage losses, damage to infrastructure, for example railways, highways and telecommunication, and damage to public goods, that for example schools and hospitals, and production losses, that loss of cattle and everything. तो यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट हमको दिखाई देती है फिजिकल डैमेज की. तो फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल डैमेज में आता है, जैसे मैंने अभी बोला कि कॉलेज ऑफ बिल्डिंग्स. ओके, तो कॉलेज ऑफ बिल्डिंग्स में रेलवे कोई मीन्स schools, colleges, houses, that what we can say that all types of buildings will be included in structural damage. Okay, wage losses मतलब क्या? वेज लॉसेस का मतलब क्या हुआ? वेज मतलब क्या? वेज लॉसेस. व्हाट हैपन? वेज लॉसेस का मतलब क्या? मैम वेज सैलरी का यस. इट इज रिलेटेड टू सैलरी. वेज लॉसेस. तो ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अभी का लॉकडाउन का ही एक एग्जांपल ले लें, तो जो नौकरी करते हैं, या फॉर एग्जांपल सबका जो खुद का जो बिजनेस होता है, तो दुकान बंद होंगे, तो वो सैलरी दे पाएंगे क्या? अपने वर्कर्स को सैलरी दे पाएंगे क्या? दुकान बंद है, 2-2.5 महीना दुकान बंद है, तो सैलरी दे पाएंगे क्या? नहीं. फिर भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला था? गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला था कि जो लोग काम पे हैं उनको सैलरी मिलना चाहिए. एम आई राइट? जो लोग काम पे उनको सैलरी मिलना चाहिए. तो जब हम अभी कल एक हम ये जो है, तो हम बोलते हैं ये जो डिजास्टर है, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कल भी पढ़ा था, मैं आज भी बोल रही हूँ, कि जो ये वायरस है, ओके, तो वो मैन मेड डिजास्टर है.
और जब हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें कि पूरा का पूरा टूट ही गया है, वेज लॉसेस है, तो उसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया, तो वेज लॉसेस भी वहाँ पे हमको दिखाई देता है। लोगों की तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, लोग भी नहीं रहते कभी कभी, तो डैमेज, तो इस प्रकार की हमको डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई देती है। प्रोडक्शन लॉसेस में जितना प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है कि बिल्डिंग ही नहीं है, इंसान ही नहीं रहे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है क्या? काम करने वाले इंसान ही नहीं रहे तो वहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है क्या? कि काम जहाँ पे काम करते हैं वो बिल्डिंग ही नहीं रही, तो वहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है? तुरंत प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, आगे देखते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में क्या दिखाई देता है कि रिडक्शन इन प्रोडक्शन डिमांड। तो जो प्रोडक्शन है वो डिमांड से रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कि जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना डिमांड बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके, उस टाइम हमारी ज़रूरत क्या थी? जब ये लॉकडाउन था और अभी भी थोड़ा सा लॉकडाउन जो चल रहा है, लॉकडाउन था तभी हमारी डिमांड क्या होगी कि जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, हाँ, एंजॉय करते हैं, बाहर होटल में खाना खाते हैं, कपड़े लेते हैं, कपड़े खरीदी करते हैं, सब कुछ लेते हैं, वो हमारी डिमांड होगी या बेसिक नीड हमारी डिमांड होगी? क्या थी उस टाइम, क्या थी हमारी डिमांड? क्या थी? बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स। ओके, तो उस टाइम भी और इस टाइम भी कि जो बेसिक नीड होती है उस पर हम ज़्यादा उसको फोकस करते हैं। ओके, तो उस टाइम जब भी फॉर एग्जांपल जब ये नेचुरल कैलेमिटीज होती है, उसकी वजह से जो जितना फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन लोगों को देना चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। कि फॉर एग्जांपल जब हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे, लॉकडाउन में अभी भी फंसे हुए थे, तो अभी जो हमने सभी जो फेस्टिवल मनाए, वो क्या हमने सब धूमधाम से मनाए? धूमधाम से मनाए हमने सब फेस्टिवल या सिंपली वे में मनाए? वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल इन सिंपली वे और विद द शोमैनशिप। कैसे मनाया हमने? Simply way. सिंपली In वे में, simple way. सिंपली वे में हमने मनाया कि जो कुछ था उसमें ही हमने उसमें सब कुछ चला दिया। तो दैट इज द थिंग कि उसका डिमांड क्या था, उस टाइम का डिमांड क्या था। देन चेंजेस इन जीडीपी पर कैपिटा, चेंजेस इन जीडीपी पर कैपिटा, जितना कैपिटल मीन जितना इकोनॉमी होता है उतना चेंजेस हमको जीडीपी में दिखाई देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कॉस्ट डाउन ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस। ओके, तो जितना डिमांड होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, डिमांड, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन मार्केट। ओके, तो फॉर एग्जांपल जो लॉकडाउन में हमने जो वक्त गुजारा, उस टाइम जो चीज़ों की जरूरत थी, फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग और प्लम्बर से लेके तो जो वेपन्स वो चाहिए उसकी डिमांड ज़्यादा थी ना? उसकी डिमांड ज़्यादा थी कि नहीं? यस और नो? जो प्लम्बिंग से रिलेटेड जो वेपन्स होते हैं, जो मटेरियल होता है, उसकी डिमांड थी कि नहीं ज़्यादा? यस और नो? यस। ओके, दूसरा था कि लकड़ी के घर में जो फॉर एग्जांपल जो फर्नीचर का जो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो सोचा जाए तो लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ था कि जो सब कुछ, सबके जो घर वगैरह टूट गए थे या वगैरह कुछ भी था, तो सबसे ज़्यादा लकड़ी की डिमांड थी उस टाइम। So according to the situation, the production demand, reduction in the production demand, and then that increase the transportation of the cost down, shutdown of the small businesses. Okay, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ता है और जो स्मॉल बिजनेस होता है उसकी यहाँ पे हमको इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस है जो रिटेलर वाले हैं वो होलसेलर पे डिपेंड है और होलसेलर वाले हैं वो प्रोडक्शन पे डिपेंड है। ओके, देन एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी शेल्टरिंग, जैसे मैंने अभी बोला, जो जितना खर्चा वहाँ पे होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, जो जीवन जरूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे खर्चा होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, आगे देखिए, इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट्स में एक पॉइंट है इकोनॉमिक मिटिगेशन, मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट्स ऑफ हैजार्ड्स,
can be adopted through the normal planning. Okay, that normal planning कौन करता है? The Ministry of Development and Former State Planning Organization, FPO उसको हम बोलते हैं. Then next उसमें आता है adjusting normal development programs to reduce the losses. For example, certain varieties of crops that are more wind or flood resistance can often be introduced in the areas of prone to the flood or cyclone. तो उसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक मिटिगेशन में बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है और फॉर्मर स्टेट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी यहाँ पे काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाए कि जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आए दैट वी कैन अवेकन द पीपल. Okay, then the people will think that the people, those who are working, that they can also, or Ministry of Development will also work with them कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और फॉर्मर स्टेट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कैसा कम किया जाए उस पर ध्यान देते हैं कि फॉर एग्जांपल सर्टेन वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स दैट आर मोर विंड or flood resistance can be often introduced in the area so prone to floods or cyclone कि जहाँ पे साइक्लोन फ्लड वगैरह ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आई हैं तो वहाँ से उनको फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए या उनको ठीक से करने के लिए दूसरे कौन से टाइप के क्रॉप वहाँ पे उगा सकते हैं या और कौन सी टाइप की खेती बाड़ी वहाँ पे कर सकते हैं या उनको फिर से री एस्टैब्लिश करने के लिए और कौन से स्टेप्स होने चाहिए, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम में उनको बताए जाते हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए एम क्या है. इकोनॉमिक जो इफेक्ट दिखाई देते हैं उसका एम क्या है? टू रिड्यूस द डिजास्टर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड ऑन द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द डिजास्टर सर्वाइवर्स. जितना है उसको उसमें से उस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं अभी का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कुछ कंपनी में लोगों को निकाल दिया गया था, आपको पता होगा शायद. कुछ कंपनी में लोगों को निकाल दिया था क्योंकि कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था कि सभी लोगों को काम पे रख सके. एम आई राइट? अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन था, एम आई राइट? एम आई राइट? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि एक जो टीचर जो स्कूल में पढ़ाते थे तो उसका घर उसी पे चलता था. जब उसके पास स्कूल बंद हो गई तो पैसा नहीं था तो उसने क्या किया, वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे. वो जो टीचर थे वो प्राइवेट स्कूल, उसने खुद का एक छोटा गैरेज स्टार्ट किया जहाँ पे साइकिल रिपेयरिंग का काम वो करता था. तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि अभी का जो सिचुएशन है, जो काम आपके हाथ में है उसको उसी या जो कुछ आपके पास है उसको टिकाए रखना वो बहुत ज़रूरी है. अंडरस्टैंड? फिर आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ कि अगर मैं ऐसा हो तो मैं ये काम क्यों करूँ. नहीं, क्योंकि सिचुएशन अभी की ऐसी है तो एम क्या होने के उसमें से बाहर निकाले जाए. ओके, strengthen those sectors of economy that are particularly vulnerable to disasters. ओके, तो जहाँ पे जिस एरिया में ये डैमेज हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी सेक्टर को मदद की जाए फॉर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर डेवलपमेंट और विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर्स. ओके, देन डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी. डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या? डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या? डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या? डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी उसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे जितना डैमेज हुआ है उसके लिए उसका जो एक्सपेंडेंसी होता है उसको डिवाइडेशन किया जाता है. समझ में आया? ये पॉइंट्स इतने इजी नहीं है. समझ में आ रहे हैं? डू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं. इंट्रोड्यूस एंड एक्सपांड डिजास्टर रेजिस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो जितना ज़्यादा हो सके तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जिसमें से
जो डिजास्टर प्रोन एरिया है उसमें से लोग बाहर आ सकें। Then next point is spread and relocate the economic activities to less vulnerable areas so that not all the principal enterprises will be affected the same area। तो क्या होता है कि जिस एरिया में होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस एरिया में ये होता है, तो उसकी वजह से उसकी इम्पैक्ट दूसरे एरिया में भी हमको दिखाई देती है। मैंने अभी पहले बताया था कि कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो उसकी इम्पैक्ट पूरे उसके समाज पे दिखाई देती है। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे मार्केट बंद हो चुका है, जहाँ पे प्रॉन एरिया है, तो वो मार्केट बंद होगा, लेकिन उसकी वजह से दूसरा मार्केट भी बंद हो जाए, ऐसा बोला क्या? दूसरा मार्केट भी उसके इफेक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है, पर पूरा बंद हो सकता है क्या? पूरा बंद हो सकता है? नहीं। मुझे जो बोलने का जो मैं आपको फिर से एक समझाती हूँ, दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे कितना महीना दुकानें बंद थी, सच्ची में 2-2.5 महीने दुकान बंद थी, सब 2-2.5 महीने थे। यस और नो? 2-2.5 महीने था दुकान बंद था सबका। ओके, पर अभी यही कंटिन्यूएशन में रखा तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, किसके पास पैसा मांगेंगे घर चलाने के लिए, जीने के लिए किसके पास पैसा मांगेंगे? तो सब दुकानें तो चालू हो गई ना, सब दुकानें अभी तो खुल रही है ना। टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है कि नहीं दिया गया है सबके यहाँ पे? हाँ। इतने टाइम में आप अपना दुकान खुला रख सकते हो। ओके, शुरुआत में क्या था कि बारी बारी, आज ये दुकान मीन्स जो इस कैटेगरी में थे आज वही दुकानें खुली रहेंगी, फिर उसके बाद ये दुकानें खुली रहेंगी, मीन्स टू strengthen the economic strategy that market will be open, market will be open। okay, अभी दूसरा एक सरकार ने नियम निकाला था to give more importance to that the things which are so what we can say that the things or the production of our country, give more importance, स्वदेशी चीजें अपनाएं। yes or no? yes or no? yes or no? ये एक नियम निकाला था सरकार ने कि हाँ स्वदेशी चीजें अपनाएं, क्योंकि मैंने जैसे हम बोलते हैं कि जितना हम अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करता है तो उतना पैसा हमारे देश में ही रहता है, जितना हम बाहर की चीजों का देशों की चीजों का इस्तेमाल करते तो वो पैसा किधर जाता है? वो पैसा किधर जाता है? इनडायरेक्टली किधर जाता है वो पैसा? बाहर जाता है ना। Are you listening? Are you listening? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. हाँ, तो वो पैसा बाहर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने वो व्हाट्सएप पे आप इमेजेस भी देखे होंगे कि कौन सी चीजें कैटेगरी आई थी कि कौन सी चीजें हमारे देश का प्रोडक्शन मीन्स हमारे देश में होता है, कौन सी चीजें हमारे देश की हैं और कौन सी चीजें हम बाहर की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर फॉर डेली लाइफ, हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ना वो चीजें, फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट हो या पेस्ट हो या कुछ भी हो, तो वो हमारे हम जितना हम अपने कंट्री का सपोर्ट करेंगे उतना ही सपोर्ट हमको मिलने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड? तो स्प्रेड एंड रीलोकेट द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज टू लेस vulnerable area so that not all the principal enterprises would be affected at the same time। Do you understand this point properly? Do you understand? Okay. Yes, ma'am. अभी ये देखिए आगे आपको ये चार्ट मैंने रेडी किया है, लेकिन आपको शायद इज इट डज इट लुक क्लियर? डज इट लुक क्लियर? No, ma'am, it is blur. It is blur. Okay, so whenever I will send this PPT in your on your mobile phone, at that time you will see, because these points are necessary, and according to the notes, if you want to write down something more about that strategies and division that related to point, you can add this point into this particular कैटेगरी। ओके, कि आप उसमें आप ऐड कर सकते हो क्योंकि पॉइंट बहुत अच्छे हैं। डायग्राम के हिसाब से भी आपको डायग्राम निकालना था तो डायग्राम के हिसाब से, लेकिन जो पॉइंट वाइज देखेंगे तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। जिसको स्कोर बढ़ाना है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ओके, और एक बात मैं आपको ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे
मैंने दूसरों के क्लास में भी बोला था कि कुछ बच्चे आपके, फॉर एग्जांपल मैं आपके SY BSc के जो बच्चे हैं कितने हैं, 130 बच्चे हैं, 125 और 130 बच्चे हैं, तो उसमें से हार्डली मुझे कभी कभी 8-10 बच्चे कि जब मैं FC का लेक्चर, तो क्यों ऐसा आप क्यों कर रहे हैं या क्या मतलब है मुझे पता नहीं, कि जितना आप लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, आप सोचिए कि अभी 6 महीने से आप घर पे बोर हो रहे हैं, तो अभी तो जब लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट है तो उसका नोट्स निकालिए। आपका देख अभी का जो सिचुएशन है उसका तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि लेक्चर्स और सॉरी एग्जाम होगी वो कैसी होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, तो उस झमेले में मत पड़िए। लेकिन अभी जो आपके पास सिचुएशन है कि अभी पास आपके पास वक्त ही वक्त है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं हर एक सब्जेक्ट की बात करूँ, सभी सब्जेक्ट की बात करूँ कि सभी सब्जेक्ट इतने ही इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो प्रोजेक्ट दे दिया, अपना काम खत्म नहीं, आपको पता होने वाला है कि हाँ ऑनलाइन एग्जाम होने वाले या ऑफलाइन एग्जाम होने वाले, ये सिचुएशन आप बता सकते हैं, ये सिचुएशन आप बता सकते हैं, यस और नो बता सकते हैं आप मुझे? No. नो। तो फिर आप ध्यान क्यों नहीं देते? जो बच्चे अभी अभी नहीं आते, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है जो पढ़ने वाला बच्चा है तो वो कैसे भी पढ़ेगा, कहीं पे जाके भी पढ़ेगा, अच्छी तरीके से पढ़ेगा। ओके, तो नेटवर्क का इशू नहीं है। और मैं एक आपको बताना चाहती हूँ, आपके ग्रुप में मैं भेजने वाली हूँ, जब तक अभी अभी कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं है, उनको लगता है सभी आपको लगता है जो BSc के बच्चे मुझे उसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं कि प्रोजेक्ट सबमिट के लिए हो गया मेरा काम, FC का खत्म, नहीं ऐसा नहीं है। इस इस गलतफहमी में मत रहिए। और किसने जो भेजा है ना पूरा का पूरा ओनली कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा PDF में आप आज भेजने वाले ग्रुप में पूरा का पूरा PDF, उससे कुछ मेहनत नहीं किया, नाम नहीं डाला है, डिवीजन नहीं डाला है, मैं उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं, 0 मार्क्स। अगर इतना जो कॉपी पेस्ट कर दिया तो मैं सबको 0 मार्क्स। आपको मैंने बताया भी था ग्रुप में कि कैसा करना है वर्ड में, वो ऐसा नहीं किया तो मैं 0 मार्क्स दे दूंगी। और जिसका नंबर है वो मुझे पर्सनल बताए, ग्रुप में नहीं बता सकते, आप मुझे पर्सनल मैसेज किए मैडम ये प्रोजेक्ट मेरा है, मैं भेजने वाला हूँ ग्रुप में। कि कितना गंदा मैसेज, इतना गंदा मुझे लगा ना कि ये कुछ भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही है लोग, पूरा का पूरा PDF 38 पेजेस, इंटरनेट यूज करते हैं तो पता चल ही जाता है कि पूरा का पूरा PDF किसी का बना हुआ आपने भेज दिया है। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहनत वहाँ पे दिखनी चाहिए। जिसने भेजा है उसको पता होगा, उसको तो डेफिनेटली पता होगा, नाम नहीं लिखा है, डिवीजन नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कौन से बेसिस पे मार्क दूँ? खुद का मेहनत नहीं है, कौन से बेसिस पे मार्क दूँ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जिसका भी बाकी है उसके नाम है, काम की वजह से थोड़ा सा आपको ये भेज नहीं पाए, लेकिन आज ग्रुप में मैं डालती हूँ। जिसके भी प्रोजेक्ट मुझे अभी तक नहीं मिले हैं या कुछ भी अभी दिए ही नहीं, बनाए भी नहीं, उसके सबके नाम डलने वाले हैं। फिर आप मुझे ये मत बोलिए कि मैडम मैंने तो दिया था, नहीं, आपने भेजा ही नहीं तो मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, वी शैल स्टॉप हियर। ओके।